नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर तालुके के नौवाद से लेकर आटो नगर तक की सड़क हो चुकी है खराब। 3 से 4 फीट गहरे गड्ढों से भरी हुई है। बसवे कल्याण के सरकारी अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पर हमला करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलुरु के उल्लाल में दरगाह का किया दौरा, सामाजिक न्याय पर दिया जोर। महाराष्ट्र के MIDC क्षेत्र में सड़क पर पलटा बियर से लदा ट्रक, लूटने के लिए मची होड़, चुटकियों में सब गायब। हरियाणा के नूह से 23 बांग्लादेशी गिरफ्तार, पुलिस को नहीं मिले कोई वैध दस्तावेज। लालू यादव की मुश्किल बढ़ी, कोर्ट ने कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने का दिया आदेश। अब समाचार विस्तार से। बीदर तालुके के नौबाद से लेकर आटो नगर तक की सड़क पूरी तरह खराब हो चुकी है और 3 से 4 फीट गहरे गड्ढों से भरी हुई है, जिससे बुजुर्गों का चलना मुश्किल हो गया है। स्कूली बच्चों और महिलाओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वे चलने में असमर्थ है। वरिष्ठ समाज सेवी और राजनीतिक नेता शशिकांत पुलिस पाटिल चौड़ी ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया है। इस स्थिति में संबंधित अधिकारी व जनप्रतिनिधि इस तरह लापरवाही बरत रहे जैसे उनका इससे कोई लेना देना ही न हो। बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे और नगर प्रशासन मंत्री रहीम खान ने इस मामले पर बात की है। शशि कुमार ने सरकार की घोर लापरवाही पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। हाल ही में बीदर आगमन पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने स्वयं बड़े जोरों शोरों से घोषणा की थी कि जिले के विकास के लिए 2025 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया गया है। इसलिए शशि कुमार पाटिल ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि इस कार्य को तुरंत अपने हाथ में लेकर शीघ्र ही कार्य शुरू किया जाए। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 25 ವರ್ಷ ಹಾಂಗ ಕರೆಕ್ಟ್ 1986 ದಾಗ ಇದು ಆಗ್ಯಾವ ಲೇಔಟ್ಗಳು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ರೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಭಾಳ ಪರೇಶಾನಿ, ಹೋಗೋದು ಬರೋದು 50 ಫೀಟ್ ರೋಡ್ ಇದು. ಎಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ಕಚರ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಭಾಳ ಪರೇಶಾನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಂದಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ರೋಡ್ ಜಲ್ದಿ ಹಿಂದಿಂದ ಟೆಕ್ ಬಿದ್ದಾವ, ಎಷ್ಟೋ ಬೀಳತಾವ, ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳತಾವ, ಕೈ ಕಾಲು ಮುರ್ಕೊಳ್ತಾವ. ಆ ರೋಡ್ ಬಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಯದ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ರೋಡ್ ಆಗಿ? ಅದು ರೋಡ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. KDP ಎಂದಾಗ್ಯದ ಅಂದಾಗ್ಯದ, ಮತ್ ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ರೋಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಏನಾರ ಗಮನ ತಂದಿರ? ಹೇಳ್ಯಾರ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೊಂಟ್ರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿರಿ? ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡೇವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿಗಿದ್ದೆವು, ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಭೇಟಿಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ರೋಡಿನ ಸಂಬಂಧ ಇವರು ಶಾಸಕರಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು? ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಬಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಓಟಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಬರ್ತಾರ, ತದವಾದ ಬರೆಯವಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರೋಡ್ನಿಗಾರ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ಬರೆಯವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬನ್ನ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಮ್ಮೆ ಬರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಆಯ್ತು. ಈ ರೋಡಿನ ಹಾಲತ್ ಏನಾದ್ರು ನಡ್ರದ್ಕ ಪೂರ ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲ. ಬಾಳ್ಕಲ್ಲಿ ಟೆಗ್ಗವ, ನೀರವ, ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಕೈಕಾಲು ಮುರ್ಕೊಳ್ತಾವ, ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ರಂಡಿ ಮುರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಿದ್ದಿ ರೋಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಜಲ್ದಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1000 ಮ್ಯಾಲ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳು. ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನಿಗಳು ಕಮ್ಸೆ ಕಮ್ 300-400 ಮನಿಗಳು. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಹಿಡಿದು ಗೋದಾವರಿ ಕಾಲನಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಚ್ಚ ಲೇಔಟ್ ಅದ, ಮತ್ತ ಬಚ್ಚ ಲೇಔಟ್ ಅದ, ಸಾಯಿನಗರ್ ಅದ, ಆಟೋ ನಗರ್ ಅದ, ಹೆಗ್ಗೆ ಲೇಔಟ್ ಅದ, KB ಲೇಔಟ್ ಅದ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಲೇಔಟ್ ಅದ, BSSK ಲೇಔಟ್ ಅದ, NGS ಲೇಔಟ್ ಅದ. ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಲೇಔಟ್ಗಳು, ಕಮ್ಸೆ ಕಮ್ 2-3 ಸಾವಿರ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳು. ಅಷ್ಟಾಗ ಕಮ್ಸೆ ಕಮ್ 500-600 ಮನಿಗಳು. ಒಂದೇ ರೋಡ್ ಅದ, ಇದು ಒಂದೇ ರೋಡ್ ಅದ. ಯಾರು ನೋಡಲು ಮಟ್ಟಲು ಬರ್ತಾರ, ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರ, ಹೋಯ್ತಾರ, ಆಯ್ತು. ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ? ಫೀಸ್ ಹೊಂಟಾವ್, ಏನ್ ಹೊಂಟಾವ್? ದುಡ್ಡಿನ ದಂಧೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕ ಹೊಂಟ್ರಿ ಕೈ ಇಂತ ಜಗದಾಗ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಹೆಸರು ಬಾಬುರಾವ್ ಗನ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷ ಇದ್ದು, 40 ಮತ್ತು 44 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಈ ರೋಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಾನು ಏನು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಾಗ ಬಂತು, ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಜಾಗ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಾನು ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ತಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವತ್ತ
ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ 4 ಸರ್ತಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾನು ಮನವಿ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ತಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 2017-18 ನಮ್ಮ ಮನೋಹರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದರು. ಅವಾಗ ಮನೋಹರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಂದು ಒಂದ್ಸತಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟೆವು. ಆ ನಂತರ 2018 ಚುನಾವಣೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆದವು. 2018 ಚುನಾವಣೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಈ ಓಣಿದು ಜನರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೆರವಾಗದ್ರು. ಅವತ್ತೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆದಿ इमीडिएटली एस्टिमेट बनाओ, कमिश्नर को बुलाओ, ये 8 दिन में चालू करना. 8 दिन में 5 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, 7 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವುದೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾನೇ ಹಿಂದೆ ದಿನಾಂಕ 24/6/2024 ಇದೇ 2023 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ಮ್ಯಾಕ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚಿವರು ಇಬ್ಬರು ಮಂತ್ರಿ ಆದ್ಮ್ಯಾಕ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಓಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದ, ತಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಟ್ಟು ತಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳಿಸಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಆವಾಗಲೂ ನಾವು ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಲಗತ್ತಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು 1 ವರ್ಷ ಆಗ್ಲತ್ತ. ಈ ಅರ್ಜಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮತ್ ಪುನಃ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಈ ಓಣಿದವ್ರು ಜನ ಬಂದಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ರೋಡ್ ಆಯ್ತದ, ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅದಕ್ಕೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರ, ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಅದ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಿನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ನಮ್ಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಅದ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅದ. ಇದು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಇದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತೆ. जयपुर के हवामहल विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में बाल मुकुंदाचार्य तिरंगे से अपनी नाक पोंछ रहे हैं। इस तरह उन्होंने देश के तिरंगे का अपमान किया। उसी तरह कर्नाटक के भाजपा विधायक पर राज्य इकाई की तिरंगा यात्रा से पहले राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का मामला दर्ज किया गया। एक वायरल वीडियो में कन्नड़ अभिमानी संघ के अध्यक्ष कृष्णप्पा को एक कार्यक्रम में मिठाई बांटने के बाद भारतीय तिरंगे पर हाथ पोंछते हुए दिखा गया है। इस घटना के दौरान भाजपा विधायक सीके राममूर्ति कृष्णप्पा के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इन दोनों घटनाओं में बीजेपी के विधायक है, जिस पर एआईएमआईएम बीदर के काउंसलर मोहम्मद अब्दुल अजीज मुन्ना ने मीडिया से बात करते हुए आपत्ति जताई है और इसकी निंदा की है। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्के का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। गंदी सोच के पाकिस्तानी आतंकवादी लोग जम्मू कश्मीर पुलवामा में मासूम जो पर्यटक घूमने गए थे उनके ऊपर नाम पूछकर, मजहब पूछकर उनको फायरिंग करके शहीद कर दिए। इसका पूरा भारत निंदा किया और पूरा भारत एक साथ ठहरा हुआ था। भारत के 140 करोड़ अवाम एक ही आवाज़ में बात कर रहे थे, पाकिस्तान को जो है ना सत्यास्ती से मिटा दो। भारत का हर मजहब को मानने वाला जो भारतीय है वो यही चाह रहा था कि दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान का खात्मा हो। जब सड़क से लेकर सांसद तक जो आवाज़ उठ रही थी उसका जो है ना ऑपरेशन सिंदूर के लेकर भारत के प्राइम मिनिस्टर और तमाम पार्टी के लोग सेना को भेज के ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसमें पाकिस्तान को सबक सिखाया गया। उसको लेकर भारत में खुशियाँ मनाई जा रही थी। ऐसे टाइम पर कभी सेना की लेडी अधिकारी के ऊपर कमेंट करना, एक मज़हब को नाम लेकर आतंकवादियों से जोड़ना, ये बीजेपी के मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर ने ऐसी घटिया और शर्मनाक बात कही। ये बात वही गधे लोग कर सकते हैं जिसका समाज में हिस्सेदारी ना हो। और उसके लेकर कल 14 मई को पूरे भारत में तिरंगा यात्रा रैली निकाली जा रही है। कल 14 मई को राजस्थान के जयपुर के एमएलए उन्होंने भी जो है ना तिरंगा यात्रा में हमारे राष्ट्रीय दिवस तिरंगे की तौहीन की। हम उसकी सख्त पूरे भारत के लोग उसकी मजम्मत करते हैं और निंदा करते हैं। ऐसे चीज़ें अगर एक जिम्मेदार सीट पर बैठकर एक एमएलए, एक विधायक इस तरह की हरकत करते हैं तो भारत में के लोगों में गुस्सा पैदा होता है। अपने वतन परस्ती को लेकर लोग जो है ना एकजुट हैं। भारत से मोहब्बत जगाने के लिए एक जो भारत के खिलाफ जो मुल्क था उसको सबक सिखाएं। जयपुर का एमएलए जिनका नाम है, हमेशा जो देशभक्ति की बात करते हैं, बाल मुकुंद आचार्य जी,
उन्होंने जो है ना तिरंगे का अपमान किया। तिरंगा रैली में तिरंगे से जो है ना अपना पसीना पोंछा, अपनी नाक पोंछी। साथ ही साथ बीजेपी के जितने भी पार्टी के लोग थे वो लोग खुशियों में जो है ना तिरंगा यात्रा में मिठाई बांट रहे थे। अपने हाथ जो है ना राष्ट्र दिवस तिरंगा जो हमारे सर की, हमारे देश की, हमारे तमाम 140 करोड़ अवाम की शान है, जो हम हमेशा ऊंचा लहराते हैं, वो तिरंगे की जो है ना अपमान करने की कोशिश की। मैं भारत के राष्ट्रपति और जहाँ पर ये सारी घटनाएं घटी गई हैं और जहाँ पर अपमान किया गया है, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा करते हैं हम कि ये भारत के ध्वज का अपमान नहीं, भारत की जो है ना मुक़द्दस मिट्टी का अपमान कर रहे हैं लोग। इन लोगों को जो है ना सेडिशन चार्जेस लगाएं कि आने वाले वक्त में ऐसी हरकत, ऐसी नाजीबा हरकत जो है ना कोई भी निठल्ला एमएलए हो चाहे आम आदमी हो करने की कोशिश ना करे। इसी तिरंगे के लिए जो है ना हमारे वीर शहीदों ने अपने जानों की शहादत दी। तो मैं हुकूमत कर्नाटका, हुकूमत राजस्थान और सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ, जहाँ पर भी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, हमारा राष्ट्रीय दिवस हमारे सरों से ऊंचा रहे। इतना कहते हुए मैं राष्ट्रपति से फिर एक मरतबा गुजारिश करता हूँ, ये लोगों के ऊपर जो है ना सिटीजन चार्जेस लगाए। जय हिंद, जय कर्नाटक। बसपा कल्याण के सरकारी अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पर आधी रात को हमला करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों ने अचानक विरोध प्रदर्शन किया। मांग के संबंध में सहायक आयुक्त मुकुल जैन के माध्यम से कलेक्टर को अपील पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने मौके का दौरा किया और अपील की है कि बसपा कल्याण गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड की कोई फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पर 4 गार्ड की तैनाती होनी चाहिए। इस विरोध प्रदर्शन को लेकर सहायक आयुक्त मुकुल जैन ने डॉक्टरों से बात करते हुए कहा कि प्रदर्शन को बंद कर हॉस्पिटल में आए हुए पेशेंट का ट्रीटमेंट करें और इस मामले में आरोपी को सजा दिलाने की बात कही। इस मौके पर सरकारी हॉस्पिटल प्रमुख डॉक्टर अपर्णा महानंदा, टीएचओ डॉक्टर अशोक मैलारी, डॉक्टर युवराज बिरादर, डॉक्टर जकीउद्दीन, डॉक्टर ताजुद्दीन, डॉक्टर दीपक जाधव, डॉक्टर महादेव, डॉक्टर संदीप बिरादर, डॉक्टर प्रशांत पाटिल, डॉक्टर अविनाश बैरे, डॉक्टर ज्योति खंडरे सहित अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ मौजूद रहे। डॉक्टर पर हमला करने वालों पर बसपा कल्याण टाउन में एफआईआर दर्ज की गई। इस मौके पर हॉस्पिटल प्रमुख डॉक्टर अपर्णा महानंद ने मीडिया से बात की। बसपा कल्याण से समेश शेख की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बसपा कल्याण में रात को 12:30 पौने 1 बजे ड्यूटी डॉक्टर पे पेशेंट्स के अटेंडर, जो कि ड्यूटी डॉक्टर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फिर भी उनके ऊपर हमला कर दिए। रीजन कुछ भी नहीं, सिर्फ ये गेट क्यों बंद करे, वो गेट क्यों बंद करे, इसलिए ओपीडी सेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन का गेट नाइट बंद ही रहता। कैजुअलिटी जो इमरजेंसी तुर्त चिकित्सा का जो गेट है वो 24/7 चालू ही रहता। वहाँ पे स्टाफ नर्स, ग्रुप डी और डॉक्टर वहाँ पे ड्यूटी पे रहते ही है। फिर भी ऐसे सिंपल रीजन से डॉक्टर पे हमला किया गया है। ये बसपा कल्याण के हॉस्पिटल के इतिहास में शायद फर्स्ट टाइम। छोटे मोटे होते रहते लेकिन हम लोग भी एडजस्ट कर लेते, चलता। सब लोग यहाँ पे हॉस्पिटल का है, सब लोग इमरजेंसी में आते, टेंशन में रहते, थोड़े छोटे मोटे होते रहते बोल के। लेकिन ये थोड़ा सा बहुत ही हमको बुरा लगा कि इतना भी हम सर्विस दे के भी हमारा कुछ वैल्यू नहीं है जैसा हो गया है। फिर भी हमने तालुका एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस लोगों को मेमोरेंडम दे के हमको आगे के सिक्योरिटी के लिए उनसे एश्योरेंस लेके हमने ओपीडी सर्विसेज हमारे चालू कर दिए हैं। आगे के सिक्योरिटीज के लिए क्या डिमांड किया है? हमारे लिए सिक्योरिटी गार्ड का हम डिमांड कर रहे हैं, डे नाइट सिक्योरिटी गार्ड 4। कि हमारे 2 हॉस्पिटल्स है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ और जीएच। वो हिसाब से हमको एटलीस्ट मिनिमम 4 सिक्योरिटी गार्ड्स तो चाहिए डे एंड नाइट के हिसाब से। इसके लिए हम तालुका एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर दे देंगे। जो रात में डॉक्टर पे हमला किया था उसके ऊपर एफआईआर वगैरह? हाँ, हो गया है, एफआईआर हो गया है। उनको आगे की कार्रवाई पुलिस लोग कर देंगे। कुमारी वैष्णवी महेश कुमार जमादर, जो टोकरी कोली समाज के वरिष्ठ नेता और भालकी तालुके के टोकरी कोली समाज के अध्यक्ष विश्वनाथ बलकेटे की पोती है, जिन्होंने टिचन्ना बसवेश्वर गुरुकुल स्कूल से 10वीं कक्षा की सीबीएसई परीक्षा में 94% अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह हम सब के लिए गर्व की बात है कि हमारे शैक्षिक रूप से पिछड़े समाज में ऐसी प्रतिभाएं पनप रही है। भगवान से सिकरा प्रोफेसर सरकारी ITI कॉलेज भालकी ने सभी से इस बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद देने का अनुरोध किया। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए KP News 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को मंगलुरु के उल्लाल में सैयद मोहम्मद शरीफुल मदनी दरगाह के 22वें पंचवर्षीय उर्स के एक भाग के रूप में आयोजित सम्मेलन के दौरान सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि हम सभी को अवसर देकर सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं। सरकार संविधान की आकांक्षाओं के अनुसार काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने नागरिकों से जाति और धर्म से ऊपर उठने, सौहार्दपूर्ण तरीके से रहने और एक दूसरे के साथ भाई बहन जैसा व्यवहार करने का आग्रह किया। शांति और आपसी सम्मान का आह्वान करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि हम सभी इंसान हैं, हमें सांप्रदायिकता और नफरत से दूर रहना चाहिए और इसके बजाय प्यार, समानता और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। महाराष्ट्र के एमआईडीसी क्षेत्र में एक बियर से लदा ट्रक अचानक से सड़क पर पलट गया, जिसके कारण उसके अंदर रखी बियर की पेटियां सड़क पर बिखर गई। जैसे ही लोगों को इसकी सूचना मिली, कुछ ही देर में ट्रक के पास भीड़ जुट गई। हालांकि इन लोगों ने ट्रक चालक और सह चालक की मदद करने की जगह बियर की पेटियां उठाकर ले जाने पर जोर दिया। जानकारी के अनुसार इस दुर्घटना में चालक और सह चालक को मामूली चोटें आई हैं। घायल चालक और क्लीनर को अनदेखा कर लोगों ने बियर चुराना शुरू कर दिया। वही सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ट्रक में रखी अधिकांश बियर की पेटियां गायब हो चुकी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। ट्रक पलटने की वजह अभी तक साफ नहीं हो सकी है। हरियाणा के नूह में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार इन लोगों के पास भारत में रहने का कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले थे। पुलिस की जांच में पता चला है कि ये सभी मजदूर पास के ईंट भट्टे में मजदूरी कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक नूह राजेश कुमार के निर्देश अनुसार जिला नूह में अपराधों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के क्रम में शुक्रवार को गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें गांव बाजटका के बिहारी ईंट भट्टे से पकड़े गए सभी लोग बिना वैध दस्तावेजों के जिले में रह रहे थे। पुलिस के अनुसार इन बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि ये लोग कब और कैसे अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए। पुलिस अधिकारी के अनुसार जिले में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेंगी। पुलिस ने स्थानीय ईंट भट्टा मालिकों और अन्य व्यवसायियों से अपील की है कि वे अपने कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से कराएं। पकड़े गए बांग्लादेशियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। दिल्ली की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। आम आदमी पार्टी आप के 15 निगम पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा देकर इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के गठन का ऐलान कर दिया है। इस नए राजनीतिक समूह को लेकर दावा किया गया है कि यह दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी में तीसरे मोर्चे के रूप में उभरेगा। इस नई पार्टी के अध्यक्ष मुकेश गोयल होंगे, जबकि इसके पीछे की रणनीति में हेमचंद गोयल की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के गठन और आप नेतृत्व के खिलाफ नाराजगी को खुलकर जाहिर किया गया। मुकेश गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि निगम का मतलब होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण, लेकिन आपने सारी ताकत एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित कर दी। ऊपर से आदेश आते थे, नीचे कोई सुनवाई नहीं होती थी। अधिकारियों को कहो तो वे टाल देते हैं। पार्षद सिर्फ नाम के रह गए हैं। उन्होंने बताया कि आप पार्षदों को भत्ता महज 300 रुपए मिलता है और उनका वेतन केवल दिखावे का लॉलीपॉप है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की परेशानियां कम नहीं हो रही है। अब एक बार फिर उन पर कोर्ट का शिकंजा कस गया है। सिवान एसीजेएम 1 की कोर्ट ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। मामला वर्ष 2011 से जुड़ा हुआ है, जब वह रेल मंत्री और राजद के अध्यक्ष थे। मामला आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। एसीजेएम 1 एमपी एमएलए की कोर्ट ने इश्तिहार जारी किया है। बताया जा रहा है कि आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के खिलाफ इश्तिहार जारी किया गया है। अब इश्तिहार लालू यादव के गांव फुलवरिया चिपकाया जाएगा। जानकारी के अनुसार पहले समन और फिर वारंट जारी किया गया और अब हाजिर नहीं होंगे तो कुर्की का आदेश लागू होगा। जानकारी के अनुसार वर्ष 2011 में सिवान के दरौंदा में राजद अध्यक्ष ने पार्टी के प्रत्याशी परमेश्वर सिंह के समर्थन में एक जनसभा की थी और अपना संबोधन दिया था। जब उन्होंने अपना संबोधन दिया था तो उस क्षेत्र में धारा 144 लागू थी और लाउड स्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित था। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने न केवल संबोधन दिया बल्कि लाउड स्पीकर का उपयोग किया था। तब वे इस काम को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना था। इस घटना के बाद उन पर एक केस दर्ज किया गया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में एक बयान में कहा कि उनकी सरकार अभी तक पिछली सरकारों द्वारा छोड़ी गई देनदारियों का भुगतान कर रही है, लेकिन उनकी सरकार की प्राथमिकता जनता के कल्याण पर है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य जनता के हित में काम करना है और कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए। रेखा गुप्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि हर काम को पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ किया जाएगा। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएगी और हर निर्णय जनता के कल्याण के लिए होगा। इस बयान से सरकार की प्रतिबद्धता और ईमानदारी की झलक मिली। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर तालुके के नौवाद से लेकर आटो नगर तक की सड़क हो चुकी है खराब। 3 से 4 फीट गहरे गड्ढों से भरी हुई है। बसपा कल्याण के सरकारी अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पर हमला करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलुरु के उल्लाल में दरगाह का किया दौरा, सामाजिक न्याय पर दिया जोर। महाराष्ट्र के एमआईडीसी क्षेत्र में सड़क पर पलटा बीयर से लदा ट्रक, लूटने के लिए मची होड़, चुटकियों में सब गायब। हरियाणा के नूह से 23 बांग्लादेशी गिरफ्तार, पुलिस को नहीं मिले कोई वैध दस्तावेज। लालू यादव की मुश्किल बढ़ी, कोर्ट ने कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने का दिया आदेश। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।